آئیں ہم اس غرض سے آئیں کہ آج خداوند مجھے ایک ترتیب بخشے میری زندگی میں اور میری خدمت میں ایک نیا ترتیب کا کام ہوگا. ہمیں ہر روز خود کو بدلنا ہے, ہر روز خود کو مارنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہو, اور ہمارا جلال کم نہیں ہونا چاہیے, ختم ہی ہو جائے اور صرف اسی کا جلال وہی ظاہر ہو. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پولس رسول نے کہا تھا, اب میں زندہ نہ رہا. جب ہم مرتے ہیں پھر وہ ہم میں زندہ ہوتا ہے. جب تک ہم نہیں مرتے زندہ یسوع ہم میں نظر نہیں آتا. ہمارے پاس چاہے کوئی بھی توڑا ہے, خدا نے ہمیں کچھ بھی کرنے کو دیا ہے, کسی بھی طرح کی ہم خدمت رکھتے ہیں, بوجھ رکھتے ہیں, تڑپ رکھتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے یہ کروں, ایسا کروں, یہ میرا بوجھ ہے, یہ میری تڑپ ہے. تو اس بات کے لیے ہمیں خدا کے کلام کے پروسیس میں سے ہو کے گزرنا ہے. کوئی بھی چیز پہلی سٹیج سے آخری سٹیج تک جب کسی پروسیس سے جب تک نہیں گزرتی, اس کی اصل شکل سامنے نہیں آتی. ہمارا پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ, جب تک ہم زمین پر زندہ ہیں, وہ ہمیشہ رہے گا ہمیں ہر روز کلام میں سے ہو کے گزرنا. ہاللیلویا, ہر روز کلام میں سے ہو کر گزرنا ہے. جو کلام کے وسیلہ نہیں بدلتا وہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا, اور اگر وہ کلام کو سن کر بھی نہیں بدلتا اس کا مطلب ہے کہ وہ بدلنا چاہتا ہی نہیں. اس لیے کہ کلام بدل دیتا ہے. کلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ بدل دیتا ہے, حالات بدل دیتا ہے, ماحول بدل دیتا ہے, سوچیں بدل دیتا ہے, زندگی بدل دیتا ہے, ہماری زندگی کا ہر انداز بدل دیتا ہے. گفتگو, سوچ, محفل, ہم پہلے جیسے رہتے ہی نہیں. جو ہماری پرانی زندگی سے واقف ہوتے ہیں اور جب ہم کلام کے وسیلہ بدل جاتے ہیں, بدلی ہوئی زندگیاں حیران کر دیتی ہیں. جو بدلتا ہے وہ دوسروں کو بدل دیتا ہے, حیران کرتا ہے دنیا کو اپنے رویوں سے, اپنی گفتگو سے, اپنے کلام سے, اپنی زندگی کے انداز سے. اور کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی, تو بس یہی کہیں, وہی خالی قبر والا یسوع میری زندگی میں وہ اس لیے جی اٹھا تاکہ ہم جی اٹھیں, وہ اس لیے زندہ ہو گیا تاکہ ہم زندہ ہو جائیں. اس لیے میرے عزیزو, خداوند کے کلام کو سننے کا موقع کبھی ضائع نہ کرے. صرف ہوش مند ضرور رہے کہ کلام سنایا کیسے جا رہا ہے, سنانے والا کون ہے. ہر جگہ پر بھی کلام ٹھیک نہیں سنایا جاتا. اس لیے ہمیں اس بات کی بھی پہچان ہونی چاہیے کہ صحیح تعلیم, درست تعلیم جو ہے وہ کیا ہے. ہم اس بات میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, آپ کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک اچھے خادم کے ساتھ ہے جو درست تعلیم کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, اور ہمیشہ اپنے خادم سے, اپنی کلیسیا سے محبت رکھے. سب سے عالمگیر محبت رکھی جا سکتی ہے, لیکن وہ لوگ جو آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت ضرور رکھیں. ان کو آپ کی ضرورت ہے. میں جب میں بیٹھا تھا اور میں ساتھ بھائی پاسٹر ندیم, کلیسیا کے ہمارے ساتھی بھائی انیل فلپ, میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں جب بھی آتا ہوں, پاسٹر جنید جو ہیں وہ کئی طرح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, گانا بھی ہے, ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ان ساری چیزوں کا صرف کیا ایک نتیجہ ہے, ایک تڑپ ہے
कि खुदावंद सुनने वालों को प्रस्तुति अच्छी मिले, कलाम अच्छा मिले। ये हमारा जो बोझ है खुदावंद हमें इसका अजर देता है। आज खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ आप नए अहदनामा में से फिलिपियों का खत जो है उसको खोल कर रखें। फिलिपियों का खत खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल की ये बातें फिलिपी में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। नए अहदनामा में निकालिए मेरे साथ, और किसने निकाली है जरा देखिए इसके कितने बाब हैं, कितने चैप्टर्स हैं? हाँ जी, 4 बाब। फिलिपियों के खत का जो मौजू है पूरे खत का वो ये है खुशी का खत। क्या है? खुशी का खत। हर खत में उसने कुछ ना कुछ बात ऐसी कही है सिखाने की, सीखने वाला अगर समझदार हो तो वो इशारों से भी सीख जाता है, और वो इशारों की जुबान समझ कर भी अपनी जिंदगी को बदल देता है। इसने तो बहुत कुछ कह दिया। खुशी का ये खत है। पहला बाब जो है वो हमें ये सिखाता है जिंदगी गुजारने की खुशी। मसीह जो है वो हमारी जिंदगी गुजारने की खुशी है। यीशु हमारी जिंदगी है। दूसरा बाब हमें यह सिखाता है कि खुशी से खिदमत करने वाली जिंदगी। पहला बाब क्या सिखाता है? मसीह में खुशी से जिंदगी गुजारना। दूसरा बाब सिखाता है मसीह में मसीह की खुशी से खिदमत गुजारी करना, खिदमत गुजारी की जिंदगी। तीसरा बाब ये सिखाता है खुशी से मसीह को जानना, खुशी से मसीह को जानना। और चौथा बाब ये सिखाता है खुशी से मसीह में आराम पाना। मसीह हमारा आराम है। पहला बाब से हमारी जिंदगी है। दूसरा बाब सिखाता है कि मसीह में हमने किस तरह से खुशी से खिदमत गुजारी करनी है। तीसरा बाब सिखाता है हमें किस तरह से खुशी से मसीह को जानना है। और चौथा बाब सिखाता है कि खुशी से मसीह मसीह में आराम पाना है। मसीह हमारा आराम है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आराम नहीं है। रात को नींद नहीं आती, हकीकत बात है। सोचें, ख्यालात, परेशानियां ये सोने नहीं देते इंसान को। दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए, ये खुदा के निजाम की बात है। लेकिन हमारी जिंदगी उलट हो गई है। हम दिन को भी सोते हैं, रात को काम भी करते हैं। कुछ लोग ना दिन को कुछ करते हैं ना रात को कुछ करते हैं। कुछ लोग दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। यानी कि हमने अपनी जिंदगी को अपने ही अंदाज में उसको एक शक्ल दे दी। हमें खुशी चाहिए, इत्मीनान चाहिए। हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान यीशु मसीह है। तब इसको कम कर दो, मक्के भी बंद कर दे, एंड पे इसको। हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान सब वाले कौन है? खुदावन यीशु मसीह। बुलंद आवाज से बोला करें, खुदावन यीशु मसीह। पहले बाब की पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो लिखा है मसीह
यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। फिलिप्पी में रहने वालों से उसने जो बात की है, ये जो खत है पौलुस रसूल का, ये पहला ऐसा स्टॉप है, ये पहली ऐसी जगह है जब उसने पहली मर्तबा यूरोप के अंदर इंजील के काम को फैलाया। ये पहली जगह है जहां पर उसने कलाम की मुनादी की। इसके बाद कई हालात में रहा, कैद खाना में रहकर भी वो ये मुकद्दसों से बातें कर रहा है, ईमानदारों से बातें कर रहा है। अब यहां पर जरा गौर करें, पहले आयत के अंदर जो एक बात लिखी है, फिलिप्पी के सब किनके नाम? मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है। मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में है। अंग्रेजी ज़बान में जब पढ़ेंगे तो मुकद्दसों की जगह में लिखा हुआ है सेंट। अब मुकद्दस कहते हैं जो पाक है। तीन बातें याद रखें, खुदा तीन हिस्सों में कई तरीकों से काम करता है, कलाम करता है, लेकिन खास तीन हिस्से हैं जिनके जरिए वो कलाम भी करता है, काम भी करता है और खुद को जाहिर करता है। पाकरू, सब बोले क्या है? पाकरू तरतीब देता है, हमें तैयार करता है। सब बोले पाकरू हमें तरतीब देता है, तैयार करता है। दूसरी बात, पाक इंसान, पाक इंसान, सब बोले पाक इंसान। पाक इंसान अपने अंदर कलाम को महफूज करता है, अपने अंदर कलाम को महफूज करता है। और महफूज जानते हैं किस बात के लिए करता है? बुरे दिन का मुकाबला करने के लिए। अच्छे दिन खुदावंद की तरफ से, बुरे दिन इब्लीस की तरफ से। और बुरे दिन का मुकाबला वही कर सकता है जिसमें कलाम महफूज है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। कलाम महफूज ना होता तो कभी मुसीबत से ना निकल सकते। हम जिंदगी में कैसी भी मुसीबत देख रहे हैं, चाहे वो मुसीबत माली है, बीमारी की है, रिश्तों की है, किसी भी तरह की है, अपनी इस मुसीबत में कलाम को ले आए, खुदावंद आपको जिंदा कर देगा, हर तरह से जिंदा कर देगा। आपके मरे हुए हालात में जिंदा किया। एक वजूद था, उसमें जिंदगी का दम फूंका, वो जीती जान हो गई। जीती जान उसके फूंकने से होगी। उसका जब फूंका जाना ही नहीं होगा, हम तो मुर्दा के मुर्दे ही रहेंगे, चाहे रूहानी हो या जिस्मानी हो। जिस्मानी तो हर रोज कम मरते हैं, रूहानी हर रोज मरते हैं। रूहानी मुर्दा कलीसिया में भरी पड़ी है। रूहानी मुर्दा कौन है? जो सिर्फ नाम की हद तक है कि मैं जानता हूं यीशु कौन है, वो यीशु में नहीं है। कलाम में एक जगह बात लिखी गई है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। 30 गुना वो है जो यीशु को जान लेता है, 60 गुना वो है जो फिर तौबा करके उसको कबूल कर लेता है, आज से मैं नहीं हूं। फिर 100 गुना वो है जो मसीह में रह के जिंदगी गुजारता है जब तक वो इस जमीन पर जिंदा है। तो हमें 30 से 60 तक नहीं रहना, 60 से 100 तक जाना है। हकीकी ईमानदार होना है।
اب یہاں پر اس نے جو بات کہی ہے مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، آگے اس نے ایک بات کہی، نگہبانوں اور خادموں سمیت، نگہبانوں اور خادموں سمیت۔ یہاں پر جو لفظ نگہبان آیا ہے انگریزی زبان میں صرف کنگ جیمز جو ورژن ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے بشپ۔ کیا لکھا ہے؟ بشپ۔ بشپ۔ اور تیموتھیوس، پہلا تیموتھیوس تیسرا باب ضرور پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ ایک بیوی کا شوہر ہو۔ ایک ریکوائرمنٹ وہاں لکھی ہے، ایلیجیبلٹی لکھی ہے، یہ کرو گے تو ایلیجیبل ہو، ایسے ہی نہیں ہے ایویں ہی خادم بن گئے، رات کو خواب دیکھی اور صبح منسٹری کھل گئی، صبح خادم بن گئے، خادمہ بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روحانی مکاری ہے، روحانی کرپشن ہے جو ہمارے درمیان ہو رہی ہے، بہت سی کلیسیاں اور منسٹریز میں ہو رہی ہے۔ خود ہی ٹائٹل لیتے ہیں اور سب کو ٹائٹل بھی لینے کا پتہ کون سا شوق ہے؟ پاسٹر۔ ٹھیک ہے، روحانی 5 ٹائٹل بائبل مقدس نے پیش کیے ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں، اس لیے کہ ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، ہم بھیڑ چال ہیں، جو جس نے کیا۔ ایک اور بات کو یاد رکھیں، ہمارے درمیان بہت سے بائبل کالجز، تھیولوجیکل سیمینریز بھی ہیں، یہ ہمیں پاسٹر نہیں بنائیں گے۔ بہت ساری گریجویشنز میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج سے یہ پاسٹر ہیں۔ ایسے بائبل کالجز والے، ایسے ٹیچرز، ایسے پروفیسرز، وہ غلط کانسیپٹ دیتے ہیں۔ کلام کی تعلیم ٹھیک سناتے ہیں لیکن کانسیپٹ غلط ہے۔ گریجویشن پاسٹر بننے کی نہیں ہوتی ہے، وہ تو تعلیم حاصل کرنے کی ہے۔ جو میٹرک کرتا ہے، میٹرک کرنے پر اس کو ڈاکٹر کہہ دیے جاتے ہیں، اس نے تو میٹرک پاس کی ہے۔ ایف اے کرنے والے کو ایف ایس سی کر لے، اگر میڈیکل کر لیتا ہے تو وہ ساتھ ہی نرس یا ڈاکٹر کہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا بلاوا اسی دن ہماری زندگی میں آتا ہے جس دن ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیم کا ریکارڈ ہے جو ہمیں بائبل کالجز سے، سیمینری سے ملتا ہے۔ اس لیے جتنے سن بھی رہے ہیں یا آن لائن بھی سن رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اپنے کانسیپٹ کو چینج کریں، اور جن کے ہاتھ میں ڈپلومہ یا ڈگری پکڑاتے ہیں ان کو غلط کانسیپٹ اس بات کرنے دیں، وہ اسی دن سے پاسٹر بن جاتے ہیں، اپنے ساتھ پاسٹر کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں، اور جو موجودہ پاسٹر ہوتا ہے جس کلیسیا کا وہ حصہ ہوتے ہیں اس کے ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ آدھی کلیسیا اپنے ساتھ پکڑتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں کہ آج سے میں تو پاسٹر ہوں۔ تو بہت سارے بائبل کالجز نے تو کلیسیاں بھی تباہ کی ہیں، خادموں اور کلیسیوں میں جدائیاں بھی ڈال دی ہیں۔ ہمیں ایسا کانسیپٹ نہیں دینا کہ آج سے آپ پاسٹر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں پھر کہیں آپ مبشر کیوں نہیں کہتے؟ یہاں پر تو پولس کہہ رہا ہے مسیح یسوع میں ہیں 2 کیٹیگریز اس نے ہم یہاں پر بیان کی ہیں، نگہبان اور خادم اس میں، نگہبان اور خادم اس میں۔ اب جو نگہبان کے لیے ورڈ آیا ہے انگریزی زبان میں وہاں لکھا ہے بشپ۔ ہمارے درمیان اچھا جو اوریجنل گریک ورڈ ہے وہ ورڈ بشپ کا ہمیں نہیں سکھاتا، وہ ہمیں اوورسیئر کا مطلب دیتا ہے، اوورسیئر۔ پاسٹر جنید ہیں یہاں پہ، وہ بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو اپوائنٹ کر دیں گے کہ آپ 10 بہنوں پر آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے بہنوں کی میٹنگ لینی۔ بھائیوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیں گے، آپ 10 بھائیوں پر ذمہ دار ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پوائنٹ کس نے کیا؟ پاسٹر جنید نے۔ اور جس کو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ نگہبان۔
बहनों की तरफ से एक निगहबान हो गई और एक भाइयों की तरफ से। तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, हमारे दरमियान कुछ ऐसे भी बिशप साहबान हैं, पास्टर जी, आपने इस बात को आपने भी याद रखना है। वो ये कहते हैं, आप तो बिशप नहीं होंगे, बिशप का ओहदा बड़ा जबरदस्त ओहदा है, लेकिन हमें उसको समझना है। वो नहीं है जो हमने खुद ही बना लिया, क्रॉस पहन के जो भी दिल किया, जिस भी मर्जी रंग की कमीज पहन ली। हमें तो ये भी नहीं पता कौन से रंग की कमीज किसके लिए है, जो मर्जी रंग की कमीज पहन लेते हैं। जिसको ये नहीं पता कि कौन सा रंग बिशप के लिए है, उसने बिशप का टाइटल लेके क्या करना। ये एक बड़ी जीती जागती बात है। पास्टर जी ने, मैंने कुछ ऐसे दोस्तों को भी बताया, हमारे दरमियान कुछ ऐसे बिशप्स हैं जो ये कहते हैं कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है वो एक बीवी का शौहर हो, तो उसको एक बीवी रखनी है, तो जो पास्टर है वो दूसरी बीवी रख सकता है। ये बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे दरमियान ऐसे बिशप्स हैं जो ये तालीम दे रहे हैं, कलाम की तालीम को तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी कर लिया और तालीम दे रहे हैं। अपना मतलब नहीं देखना, पॉइंट कौन कर रहा है, बात कौन कर रहा है, पौलुस रसूल, और वो निगहबानों की बात कर रहा है। बिशप का ओहदा इंतजाम का ओहदा है, इस बात को याद रखें। बिशप का ओहदा इंतजाम का ओहदा है। कोई ये ना समझे नाम के साथ बिशप लग गया, ओए बागो बागो शेर आ गया, ये बात नहीं है। बिशप का ओहदा इंतजाम का ओहदा है। पहले तो बिशप साहबान अपनी इस बात की करेक्शन करें, उनके पास इंतजाम किसका है, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है। अपॉइंट यहां पर पौलुस रसूल कर रहा है, और बिशप की खिदमत, बिशप का ओहदा वो रसूली खिदमत के साथ जुड़ा है और रसूली खिदमत के अंडर है, रसूली खिदमत के अंदर है, वो उसके ऊपर नहीं है। हम इस गलत फहमी से निकले कि हम ये समझते हैं कि हमने बिशप का टाइटल साथ यूज किया है। मेरे बाप के नाम के साथ भी बिशप का टाइटल था, मेरे भाई के साथ नाम के साथ भी है। मैं उनको भी यही बातें सिखाता हूं, मैंने बातों को मैंने सीखा है, मेरे बाप ने मुझे ये बात सिखाई थी, क्योंकि उनके पास एक रसूली खिदमत भी थी कलीसिया बनाने की। वो उसके इंतजाम को देखते थे और इंतजाम वालों को भी जमा किए थे। ऐसे तो नहीं कि 220 चर्च बिल्डिंग्स बन गई अब तक, एक मजाक तो नहीं है। खिदमत थी तो हुआ, तड़प थी तो हुआ। हम बनाते क्या है, बात तो ये, हम बनाते क्या है। शरीफ डाल लेने से, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता। एक ही रंग जो चढ़ गया है उसको शामिल कर दे, यीशु के खून का नाम। वही हमारा बुलावा है, वही हमारी खिदमत है। इसलिए तालीम दें, टीचिंग दें, ग्रेजुएशन भी हम करें, लेकिन ठीक तरीका से करें। मासूम स्टूडेंट्स को गलत फहमियों का शिकार होने से बचाएं। मैंने बहुत सी कलीसियां देखी हैं, उनमें धड़ाड़े आ गए, खादम रोते रह गए। वो ग्रेजुएशन ही बहुत से लोगों, जितने अपने रिश्तेदार थे सबको लेके बस दौड़ गए। हमने धड़ाड़े नहीं डालनी है, हमने बिखरे हुए को इकट्ठा करना है, टूटे हुए को हमने जोड़ना है। तो इसलिए निगहबान का ओहदा बड़ा अच्छा है, लेकिन ये वाली तालीम बड़ी गलत है कि निगहबान एक बीवी रखे, जो पादरी साहब है वो 2 रख सकते हैं। हमारे दरमियान ऐसे भी हैं, 2 शादियां भी की हुई है, स्टेज पे भी होते हैं, ऐसे हालेलुया के नारे हैं, और चढ़ाने वालों को पता है अब चढ़ाने वाला भी बनेगा और चढ़ने वाला भी बनेगा। हमने इन बातों को सीखना है। ये बातें अब ये ना समझिएगा कि सिर्फ किसी मर्द के लिए की जा रही है, दोनों के लिए। तीसरा बाब, पहला तीमुथियुस तीसरा बाब घर जाके पढ़िएगा, वहां पे लिखा है खादम और खादमा।
खादिम को भी कहा गया है खादिम संजीदा हो, और खादिमों को भी कहा गया है खादिमा संजीदा हो। संजीदगी से गुफ्तगू करें, संजीदगी का लिबास पहने, यानी स्टेज पे जाकर रोला ना डाले, ठीक है? हम रोला नहीं हमें चाहिए, हमें शोर शराबा नहीं चाहिए। स्टेज पर चाहे खादिम हो या खादिमा हो, उसके पास संजीदगी का पैगाम हो, कलीसियाओं को तरतीब देने का पैगाम, अपना आप नहीं दिखाना, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में, जो मसीह में है, निगहबान और खादिमों समेत। अब ये जो खादिम भी हैं, खिदमत गुजारी का काम करने वाले लोग, कुलसियों के खत में 5 खिदमत, इफ्सियों चौथा बाब जरा निकालें, 5-fold मिनिस्ट्रीज जो है, इसको जरा पढ़िएगा। इफ्सियों चौथा बाब उसकी 11 आयत के हवाला नोट करें और इसको पढ़ें। देखिए, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। 3 हिस्से याद रखें। रूह के फल कितने हैं? 9। उसका हवाला कहां पे है, किसको याद है? गलीतियों 5वां बाब 22 आयत, इस हवाला को लिख लें। रूह के 9 फल, गलीतियों 5वां बाब 22 आयत। रूह की नेमतें कितनी हैं? 9। इसका हवाला पहला करंथियों 12वां बाब पढ़ लीजिएगा। पहला करंथियों का 12, 13 और 14, ये 3 चैप्टर्स बड़े ही जरूरी हैं एक खिदमत गुजार को पढ़ने के लिए। यहां पर अब जिक्र है 9 नेमतों का, 9 गिफ्ट्स का, और इफ्सियों चौथा बाब 11 आयत 5 खिदमत का जिक्र। अब ये करते क्या है? अच्छा, मैंने पहले शुरू में एक बात की थी, वो 3 बातें कंप्लीट नहीं, मुझे थोड़ा याद आ गया। पाक रूह, पाक इंसान जो कलाम महफूज रखता है, और पाक कलाम। पाक कलाम कलाम पैदा करता है, पाक रूह तरतीब देता है, पाक इंसान कलाम को अपने अंदर महफूज रखता है, पाक इंसान, और पाक कलाम पैदा करता है। 3 बातें हैं। खुदा इनके जरिए खुद को, अपनी मर्जी को जाहिर करता है कि वो क्या चाहता है। अब यहां पर भी अब 3 हिस्से हैं, रूह के फल, रूह की नेमतें और खिदमत की नेमतें। रूह के फल कितने? 9, रूह की नेमतें 9, खिदमत की नेमतें 5, जिनको अभी हमने पढ़ा है, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद। अब रूह के फल क्या करते हैं? रूह के फल से हमारा मसा बढ़ता है। रूह के फलों से हमारा मसा बढ़ता है, क्योंकि रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी। तो जिसमें मोहब्बत ही नहीं, इसका मतलब उसमें खुदा नहीं। तो जिसमें खुदा नहीं, उसमें जिंदगी का दम नहीं। तो जिसमें जिंदगी का दम नहीं, वो तो खाली एक मुर्दा वजूद है, वो मुर्दा सा एक वजूद है, कुछ भी नहीं उसकी। रूह के फलों से हमारा मसा बढ़ता है, रूह की 9 नेमतों से हमारी खिदमत चमकती है, हमारी खिदमत चमकती है, और 5 खिदमत से कलीसिया चमकती है। 5 खिदमत से कलीसिया चमकती है। कलीसिया की ये चीजें, ये चर्च बिल्डिंग की चीजें, ये खूबसूरती, ये इंतजाम, ये एक तरीक़ेकार है कि हर चीज बेहतर नजर आए, लेकिन कलीसिया की इन सारी चीजों से हट के जो असल चमक होती है वो इन खिदमत से है। कलीसिया चमके, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद, ये 5 खिदमत हैं। लिखा है दे दिया, 3 नतीजे निकले इसके। अब वो भी नोट कीजिएगा, ताकि मुकद्दस लोग
परफेक्ट होने की जरूरत है, कामिल होने की जरूरत है। खिदमत गुजारी का काम किया जाए, सर्विंग स्पिरिट। उसके बाद और मसीह का बदन तरक्की पाए, मसीह का बदन तरक्की। इसलिए मेरे चीजों, हमारी खिदमत, हमारा बुलावा खुदावंद की तरफ से है। बहुत सी सीखने वाली बातें जमीन पर रहने वाले जो टीचर्स हैं उनके मसला है। पौलुस ने भी तालीम दी, 2-2 साल तक भी तालीम देता रहा, सिखाने वाला था। लेकिन हमें खिदमत कौन देता है? कलाम में लिखा है, वो जो वाला जब वो दुआ और रोजी रख रहे थे, अमाल छठा बाब, उसके अंदर ये एक आयत लिखी है बड़ी जबरदस्त, इसको जरा सुनिएगा। जब वो दुआ कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुछ बोला और उसने कहा, मेरे लिए साउल और बरनबास को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। माल 13 बाब पढ़िएगा बुलंद आवाज से। दूसरी आयत, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। आमीन आमीन। रूह कुछ बोला, सब बोले क्या है? रूह कुछ बोला। उसने बोला इन दोनों को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो। वर्ड यहाँ पर क्या है? मखसूस, मखसूसियत। कई चर्चिस में होता है ना कि पास्टर की ऑर्डिनेशन हो रही है, उसकी ऑर्डिनेशन तो उस दिन हो जाती है जिस दिन वो खुदावंद में आ जाता है। उसकी मखसूसियत तो उस बुलावे के साथ है जो खुदावंद की तरफ से उसको मिलता है। मखसूस कर दो जिस काम के वास्ते मैंने उन्हें बुलाया है। कॉलेजेस, सेमिनरीज हमें बुलाती हैं, हमसे तालीम सीखो। खुदावंद हमें बुलाता है, मेरी कलीसिया को कायम करो। ये फर्क है, हमें फर्क पैदा करना है। अदारे हमें कलीसिया के लिए मखसूस नहीं करते, वो हमारी तालीम पाने का रिवॉर्ड हमें देते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक की सनद है, एफए की है, बीए की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, तो डिग्री है, तालीम पाने की है। लेकिन हमारा बुलावा रूह कुछ की तरफ से है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हमारा बुलावा उसी दिन खुदावंद हमें बता देता है, मैंने तेरे अंदर कौन सी खिदमत रखी है। मुबश्शिर। कभी ये ना सोचिएगा कि बहुत बड़ी एक गलत तालीम दी जाती है कलीसियाओं में, पहले मुबश्शिर बनो और फिर पास्टर बनो। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे तालीम देने वाले भी, ऐसों को कहा गया है मुकद्दस लोग कामिल बने। आप मुकद्दस हैं लेकिन अपनी एक डायरेक्शन ठीक कर रहे हैं। आप जिस सड़क पे जा रहे हैं उसके एंड पे जो है वो बंद है, वहां पर मंजिल नहीं है, सड़क चेंज कर दें जहां पर मंजिल है। ठीक है, आपको चलना आता है, आपको सड़क की पहचान भी है, सिर्फ ये पहचान नहीं है जिस सड़क पर मैं हूं ये गली आगे से बंद है, मैं वो चेंज कर लूं। बस सिखाना अच्छी बात है, सिर्फ लोगों को ये कहना बंद कर दे कि आप पहले मुबश्शिर होंगे तो फिर पास्टर होंगे। मुबश्शिर की खिदमत, पास्टर, ये दोनों अलग अलग हैं। ये पांचों खिदमत जो हैं ये अलग अलग खिदमत हैं। आप यहाँ पर हैं, इस कलीसिया में हैं, कलीसिया के अंदर ये तालीमी मैसेज जो है ये सबके लिए है, क्योंकि कुछ लोग खिदमत में होते हैं, कुछ आना चाह रहे होते हैं, कुछ आ चुके होते हैं। तो जो आना चाह रहे होते हैं उनके अंदर इस बात की तड़प होती है कि मैं क्या डायरेक्शन लूं, मेरी क्या। मैंने बहुतों से सुना जो कहते हैं जी मुझे पता नहीं है मेरे अंदर खिदमत क्या है। कई लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि मुझे बस दुआ की खिदमत मिली है। दुआ की कोई खिदमत नहीं होती। दुआ हमारा रूहानी सांस है, वो हर ईमानदार का रूहानी सांस है। दुआ करेंगे तो जिंदा रहेंगे, वो तो हमारी रूहानी जिंदगी का एक हिस्सा है।
वो तो हमारा सांस है, वो खिदमत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे ही हैं, हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिंदगी से खुद को अलग कर लेते कि मैं बस दुआ कर रहा हूँ। खाली दुआ भी काफी नहीं होती। हम खादिम हैं दुआ और कलाम के। बोले दुआ और कलाम। दुआ और कलाम को इकट्ठा करें, कलाम पढ़ें फिर दुआ करें, अपनी दुआ की तरतीब बनाएं। दुआ तो हमारा एक फ्यूल है, टैंक को भरना है, खाली हो जाएंगे गाड़ी रुक जाएगी, भरेंगे चलते जाएंगे। ये खिदमत नहीं है सिर्फ, ये तो हमारा एक बोझ है, तड़प है। खिदमत ये है, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, इन पांचों खिदमत में से खुदा ने हमें किसी न किसी में चुन रखा होता है। कुछ और भी खिदमत हैं, वो इंतजाम की हैं, वो फिर इनके बाद आती हैं। खुदा ने उसमें भी कई लोगों को चुना होता है। कई लोगों की बड़ी एक खुशी होती है, उनका सिर्फ एक बोझ होता है, तड़प होती है कि मैं चर्च शुरू होने से पहले हर चीज को रेडी कर दूं, हर बेतरतीबी को ठीक कर दूं, चेयर लाइन में कर दूं, कहीं पर कोई बल्ब खराब है उसको ठीक कर दूं। वहां पर उनकी इंतजामी खिदमत होती है, वो भी खिदमत है, वो भी खुदावंद ने उसके अंदर पैदा की होती है। लेकिन किस चीज के लिए? कलीसिया की तरक्की के लिए, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। हमारी हर मेहनत का, हर तड़प का, हर ख्वाब का, हर दुआ का एक ही निचोड़ है, मसीह का बदन तरक्की करे। हम मसीह के बदन का सोचें, उसके लिए मेहनत करें, उसके घर के लिए मेहनत करें, वो हमारे घर के लिए बड़ा कुछ करे, वो हमारी जिंदगी के लिए बड़ा कुछ करेगा, वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। ऐसा अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आज इस जगह पर जितने लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं और घरों में भी जो सुन रहे हैं, खुदावंद इनकी जिंदगियों में एक नई तब्दीली को मांगते हैं। तूने इन सबको अपने काम के वास्ते बुलाया है, लेकिन खुदावंद जहां पर भी बेतरतीबियां हैं, सिखाने में, सीखने में, रूहुल कुद्स तू वहां पर तरतीब पैदा कर। जो जिंदगियां नापाकी में रहकर कलाम सुनाती है, उनको पाक कर खुदावंद। आए खुदावंद वो लफ्जों से तो तेरी ताज़ीम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल तुझसे दूर है, उनमें कलाम महफूज नहीं है। कलाम उनसे महफूज हो जाए, उनकी जिंदगी के अंदर है खुदावंद एक नई तब्दीली आ जाए। खुदावंद तमाम सुनने वालों पर तेरा फजल हो, खिदमत चमक जाए खुदावंद, खिदमत के अंदर एक नई सूरत आ जाए खुदावंद, एक नई शक्ल आ जाए। ऐसे लोग जो ऐसी सड़क पर हैं जहां मंजिल का नहीं पता, उनका रास्ता बदल जाए खुदावंद। वो ऐसी राह पर आ जाए जहां पर उनकी मंजिल हो और उस मंजिल पर आगे तू खड़ा हो और खुदावंद वेलकम करने के लिए खड़ा हो कि ये वो जगह है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। राहें बदल जाए, इरादे बदल जाए, फैसले बदल जाए, खिदमत का अंदाज बदल जाए, दुआओं में तब्दीली आ जाए, ईमान लाने में तब्दीली आ जाए, बोलने में, कलाम करने में, सोचने में, प्लीज के मंसूबे फेल हो जाए यीशु के नाम से। और खिदमत को एक नया अंदाज बस, जो लोग बगैर रोया के खिदमत कर रहे हैं, उनसे हम कलाम हो खुदावंद। ख्वाब में बोल, रोया में उन पर खुद को जाहिर कर, अपनी मर्जी जाहिर कर कि तूने किस काम के वास्ते बुलाया है। जिसको यही नहीं पता वो किस काम के लिए बुलाया गया है, खुदावंद उसकी जिंदगी जाया होने से बच जाए, उसकी जिंदगी का वक्त बच जाए। उनके इब्लीस ने जहन को तारीकी में डाला हुआ है ताकि लोग समझ ही न सकें कि खिदमत कौन सी है। लेकिन रूहुल कुद्स तू तमाम तारीकियों को दूर करके तू रोशनी लेकर आता है और तू बता देता है कि मैंने किस काम के वास्ते बुलाया है। हमें बताने वाले इंसान नहीं है कि मैं कौन सी खिदमत रखता हूँ। खुदावंद हमें सिखा सकते हैं तेरी रहनुमाई से, लेकिन हमारे बुलावे की
तस्दीक रूह से होती है, तेरे कलाम से होती है, तेरे कहने से होती है। मुफ्त पाया है, मुफ्त बांटो, मुफ्त लिया है, मुफ्त दो, मैंने तुम्हें बुलाया है। खुदावंद हमारा बुलावा तेरे फजल का बुलावा है, तेरे जलाल का बुलावा है कि हम तेरे फजल में रहकर खिदमत करें, तेरे जलाल में रहकर तेरे जलाल के वास्ते खिदमत करें, इसलिए तू जलाल का बादशाह है। तमाम सुनने वालों पर तेरी बरकत हो। एक दफा फिर पास्टर जुनैद, उनकी फैमिली, उनकी मिसेज, उनके बच्चों पर तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे। ये चुना हुआ खानदान है, इस खानदान के खिलाफ जितने इब्लीस के मंसूबे हैं वो फेल हो जाए, जितनी इब्लीस की कोशिशें हैं उनके जोर को तोड़ते हैं। खुदावंद इनकी टीम में तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरी मौजूदगी को मांगते हैं, इस कलीसिया में खुदावंद तेरे इलाही जोर को मांगते हैं। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद सबको बरकत दे। हालेलुया। जैसा कलाम था तालियां वैसे ही आए, जोरदार तालियां खुदावंद के सिर खाने के लिए, खुदावंद की बरकत के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। यकीनन आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई है, ताज़गी पाई है, और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के कादिर के, अपने कीमती वक्त के लिए भी उन्होंने पीछे चर्च वापस जाना है कलाम के लिए। सो हम आखिरी गीत गाएंगे हदीये का, ताकि हम खुदावंद के हुज़ूर अपना बीज बोएं। अदील के साथ मिलकर गीत गाएंगे और गीत के बाद हम बरकत चाहेंगे। और पुकार, आज आखिरी पुकार है जुनैद की, आज वो मौजूद है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस।
शुक्र उसके नाम की तारीफ हो। शादी की पुकार और ये तीसरी और आखिरी पुकार होगी। पुकार दी जाती है कि चुने जावेद बल जावेद इकबाल उम्र 30 साल हालत कंवारा सतना बहार कॉलोनी कोटला लखपत लाहौर, जिसकी शादी अफीफा और रोज दुख्तर बाबर एम पॉल उम्र 27 साल हालत कंवारी सतना जुडिशनल कॉलोनी जोहर टाउन के साथ 5 नवंबर बरोज हफ्ता को होना करार पाई है। अगर किसी को कोई कानूनी या शरई वजह मालूम हो जिसकी वजह से इनका पाक निकाह बांधना जायज न हो सके, वो भी बताए बगैर ना हमेशा के लिए खामोश है। आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि कोई कानूनी और शरई वजह नहीं जानता। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का शुक्र, आज से 9 बजे का टाइम हमने किया, लेकिन 9:30 के बाद 9 बजे के बाद लोग आ रहे हैं। यानी टाइम हमारी हालत वही है कि हमने लेट किया ना, फिर हम वही टाइम लेते हैं पीछे वाला। थोड़ा सा तरतीब में आइए। 9 बजे का मतलब 9 बजे हो के जैसे ही 9 बजे हम चर्च स्टार्ट करें 11 बजे माइनर हो जाए। एक दिन है, एक दिन कुर्बानी है। बच्चों को छोड़ने के लिए तो उठते हैं, ड्यूटियों पे जाने के लिए उठते हैं। इतवार का दिन क्यों एंजॉयमेंट के लिए दिन हो, क्यों एंटरटेनमेंट के लिए दिन हो, क्यों छुट्टी का दिन, इसको क्यों समझा जाए? अगर आलमगीर कलीसिया ने इस दिन को मुकर्रर किया है इबादत के लिए,